डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्प। आपके सिलेबस में जो यूनिट 6 है इल्यूमिनेशंस, उसमें डिफरेंट टाइप के लैम्प की स्टडी है। तो सिलेबस के में है आपके इनकैंडिसेंट लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प जिसे ट्यूबलाइट भी कहते हैं, सोडियम वेपर लैम्प, मर्करी वेपर लैम्प और हाइड्रोजन लैम्प। इन लैम्प्स के बारे में वर्किंग और उसकी स्टडी है कि क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे उसकी वर्किंग है। तो आज हम इनकैंडिसेंट लैम्प और फ्लोरोसेंट लैम्प के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनकैंडिसेंट लैम्प की। यहाँ हम स्टडी के साथ साथ आपको कुछ एक वीडियोस भी दिखाएंगे, एनिमेटेड वीडियो की कैसे ये लैम्प्स की वर्किंग है, जिससे आपको थोड़ा इजीली रहेगा समझने में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनकैंडिसेंट लैम्प की हिस्ट्री के बारे में कि इस लैम्प का इन्वेंशन किसने किया था और कब किया था। तो देखिए, इस लैम्प का इन्वेंशन जो है वो 19th सेंचुरी में थॉमस एल्वा एडिसन और जोसेफ स्वन ने किया था। इनकैंडिसेंट लैम्प जो हीट प्रोड्यूस करता है वो एक फिलामेंट की हेल्प से प्रोड्यूस करता है, इस फिलामेंट का नाम होता है टंगस्टन। जब करंट इस फिलामेंट से पास होती है तो लाइट प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे जो फिलामेंट है, ये टंगस्टन जो फिलामेंट की बात कर रहे हैं हम, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है ऑक्सीडाइजेशन से। और ये ऑक्सीडेशन किससे होता है, यहाँ पे जो ग्लास है उसमें एक गैस फिल होती है, उसके थ्रू यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जिससे इस फिलामेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये जो लैम्प होता है इसकी कैपेसिटी होती है 700 से 1000 घंटे तक ये लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इस लैम्प की कुछ एनिमेटेड वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको इसकी वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ आएगा। तो यहाँ पे Today we will discuss how a light bulb works. इनकैंडिसेंट It's लैम्प also की known वर्किंग as के बारे में। incandescent light bulb. इस It has a वीडियो को long ध्यान से history of देखिए आप लोग। corrections and modifications. And it was Thomas Edison who gave the first commercially successful bulb in 1879. This is the bayonet mount, also called the holder. These are the electrical foot contact points where we apply the electricity. This is the glass tube or glass bulb. All the components are put inside this. This is called the filament. Many types of filament were tested with this, from carbon filament to tantalum metal filament and many more. And now we have the tungsten filament. It has a very high melting point, like 3695 degrees Celsius, and very high electrical resistivity, which is needed for our purpose. Okay, now this is the contact wire. Generally this is made of lead. It makes the circuit completed, and these two wires hold the filament. Generally this is made of molybdenum. And here is a very interesting thing inside this glass tube. The element of this wire is not same as the element of the contact wire. This is different, and this is called Dewey wires. Now the question is, why is it different? Because on passing current, the thermal expansion of wire and glass should be same. Otherwise glass will break. So we need a material whose thermal coefficient is very close to the thermal coefficient of glass. So that we use the Dewey wires. It's made of heterogeneous alloy and it has a minimal oxidation property. When we connect power source with the electrical foot contact, current will pass through the coil, that is the tungsten coil. The main feature of tungsten is that when current passes through it, it gets heated, and on heating it emits light. So the idea is to get more light we need more heat, and to get more heat we need more resistivity in the wire. And from Ohm's law we know the greater length the greater resistivity, so that this tungsten wire is coiled so that we get a long length in a small place, and the cross sectional area is also reduced to get more resistance in the coil. And one more important thing, why it gives yellow light, why not a white light? So you can see
When we just switch it on at starting, it gives a deep red light, and after some time it gets yellow. Basically, it's due to the temperature. For higher temperature, it will go to white, and then blue, and then ultraviolet. But at the point where it gives white light, it starts to melt. So the manufacturer restricts the temperature below this white point by setting the resistance of the wire. Now the main problem is when metals are heated, they start to oxidize very quickly. As a result, the tungsten wire doesn't live long. So to prevent the oxidation, oxygen are removed and we replace it with the gases like nitrogen, argon, like this. And one more facility with this light bulb is that it can be operated with any type of voltage source like DC or AC, because here we need the current to flow through the coil irrelevant of the direction of the current. Anyhow, if current passes through it, it will get heated and it will emit light. So this is all about light bulb. Today we will discuss तो इस फिलामेंट, ये जो इनकैंडिसेंट लैम्प की बात हम कर रहे थे, इनकैंडिसेंट लैम्प में आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। और ये यहाँ पर इस फिलामेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है ऑक्सीडाइजेशन से। और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि कैसे ये पहले येलो पिंक लाइट से येलो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो एनिमेटेड वीडियो आपने देखा है उससे आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प की। तो उसमें भी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। जो ये हमारी ट्यूबलाइट है उसका कैसे कनेक्शन होता है और कैसे उसकी वर्किंग है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि जैसे आपने देखा है फ्लोरोसेंट लैम्प, ये इस तरह से आपने ट्यूबलाइट्स देखी हुई हैं। जो सबसे ज़्यादा इसकी जो ट्यूबलाइट्स है, ये मतलब मेन जो बेनिफिट है इसका, ये लॉन्ग लाइफ है इसकी, और ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं और ये बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करती है। और इसकी कैपेसिटी होती है 10,000 से 20,000 आवर्स की। तो ये इसकी वर्किंग कैसे है, और जो पहले जो ट्यूबलाइट होती थी और अब जो ट्यूबलाइट यूज़ में ली जाती है, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे वर्किंग है, उसके लिए भी मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाती हूँ। और ये वीडियो हिंदी में है तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, कैसे वर्क करता, कनेक्शन समझा देता हूँ। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल चोक वाले ट्यूबलाइट के कनेक्शन का डायग्राम है। तो इसके अंदर हम लोग चोक को यूज़ करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल चोक है, ये ट्यूबलाइट है एंड ये स्टार्टर है। तो इलेक्ट्रिकल चोक वाले का कनेक्शन कुछ इस प्रकार होता है। तो दोस्तों, जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर मर्क्यूरी एंड आर्गोन गैस यूज़ किया जाता है। आर्गोन गैस को कभी कभी ना यूज़ करके नियोन गैस भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली आर्गोन गैस यूज़ किया जाता है और साथ में मर्क्यूरी रहता है। तो दोस्तों, जो मर्क्यूरी रहता है उसको लो प्रेशर करके डाला जाता है ट्यूबलाइट के अंदर, एंड जो ट्यूबलाइट होती है उसके आजू बाजू में हम लोग फोस्फोरस की कोटिंग करते हैं। जो हमें वाइट वाइट दिखता है वो फोस्फोरस की कोटिंग रहती है। इसी फोस्फोरस की कोटिंग की वजह से हमें ट्यूबलाइट वाइट कलर में दिखती है एंड वाइट कलर में लाइट अपने को मिलती है। ट्यूबलाइट के एंड कैप पे इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि दोनों साइड में होते हैं। फिर इस इलेक्ट्रोड से कनेक्शन निकल करके स्टार्टर के अंदर जाता है। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को स्टार्टर समझा देता हूँ। तो स्टार्टर के साथ ही साथ मैं आप लोग को ट्यूबलाइट भी बता दूंगा कि कैसे वर्क करती है। तो हम लोग पहले स्टार्टर को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये स्टार्टर है, ये अंदर से कुछ इस प्रकार का होता है। मीन्स अंदर एक कैपेसिटर होता है और ये एक छोटा सा बल्ब होता है जिसको हम लोग नियॉन स्मॉल बल्ब भी बोलते हैं। तो स्टार्टर को समझाने के लिए आप लोग को मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अंदर से वो कुछ इस प्रकार का होता है। मीन्स उसके अंदर एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है एंड एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। तो जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप से बनता है एंड कैपेसिटर उसके पैरेलल में लगा होता है। मीन्स ये जो लैंप है एंड ये कैपेसिटर है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल कनेक्टेड रहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों का टर्मिनल सेम पॉइंट पे मिला हुआ है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो दोस्तों, कैपेसिटर एंड ट्यूबलाइट का वर्किंग समझाने के लिए आप लोग को मैं एक वेवफॉर्म के थ्रू समझाता हूँ, तो आप लोग को ईजिली अंडरस्टैंड होगा। तो दोस्तों, जब भी हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से जो करंट है वो आएगा चोक के पास, चोक से होते हुए इलेक्ट्रोड के पास जाएगा एंड इलेक्ट्रोड से होते हुए इस स्टार्टर के पास आएगा एंड स्टार्टर से होते हुए इस इलेक्ट्रोड के पास होते हुए न्यूट्रल के पास चला जाएगा।
तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि हमारी ट्यूबलाइट स्टार्ट नहीं होती, सबसे पहले हमारा स्टार्टर स्टार्ट होता है। तो जो स्टार्टर होता है उसके अंदर देखिए जो बल्ब होता है, ये छोटा सा एक बल्ब होता है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है। तो जब भी ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, मीन्स जो हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट था एंड मूविंग कॉन्टैक्ट था, वो जो फिक्स कॉन्टैक्ट है वो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, वो गर्म होने की वजह से क्या होती है कि मुड़ना चालू कर देती है। तो मुड़ने की वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो जब भी वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट जैसा कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो तुरंत ड्रॉप हो जाता है, मीन्स वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, वो बहुत ही कम हो जाता है एंड हमारा जो करंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ को समझाने के लिए आप लोग को मैं वेवफॉर्म के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 वेवफॉर्म है। तो जो पहला वेवफॉर्म है वोल्टेज का है, ये करंट का है और ये टेम्परेचर का है। तो दोस्तों जब भी हम लोग ट्यूबलाइट के स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो हमारा वोल्टेज है वो इस बल्ब के अक्रॉस इतना वोल्टेज आता है। तो इतना वोल्टेज आने की वजह से क्या होता है कि ये बल्ब ऑन हो जाता है। तो बल्ब ऑन हो जाने की वजह से ये कुछ अमाउंट का करंट सक करता है, मीन्स इसको कुछ अमाउंट का करंट लगता है ग्लो होने के लिए। तो ये जो करंट है वो बल्ब का करंट है एंड ये जो वोल्टेज है ये बल्ब के अक्रॉस का वोल्टेज है। और ये जो टेम्परेचर है ये टर्मिनल जो इसके अंदर फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उसके अक्रॉस का टेम्परेचर है। तो जब भी हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो सबसे पहला बल्ब ग्लो होता है। तो बल्ब ग्लो होने की वजह से क्या होता है कि उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज क्रिएट होता है एंड कुछ उसके अंदर से करंट पास होता है। तो जब भी बल्ब ग्लो हो रहा है तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हीट जनरेट करता है बल्ब ग्लो होने के बाद। तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब भी वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है एंड बायोमेटेलिक स्ट्रिप है वो मुड़ जाती है। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो मुड़ने की वजह से क्या होता है कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, मीन्स शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है कि उस टाइम पे वोल्टेज तुरंत ड्रॉप हो जाता है, मीन्स वोल्टेज 0 के आसपास आ जाता है, लेकिन जो हमारा करंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है तुरंत। तो जब भी दोस्तों करंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो लैंप है वो लैंप जैसा एक्ट नहीं करेगा, ये शॉर्ट सर्किट जैसा एक्ट करेगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि जब भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो लैंप जैसा एक्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो हीट जनरेट नहीं करेगा, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चालू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने वेवफॉर्म में बताया कि देखिए टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चालू हो गया। तो जब तक इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होते रहता है तो एक जो सर्टेन पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर इसका इतना डिक्रीज़ हो जाता है कि वो कॉन्टैक्ट रिटर्न ओपन हो जाते हैं। तो रिटर्न जैसे ही ओपन होता है तो क्या होता है कि उसका करंट है वो वापस कम होगा एंड वोल्टेज है वो वापस इंक्रीज़ होगा। तो ये जो सिचुएशन इतनी फास्ट होती है उसको हम लोग di/dt बोलते हैं। तो di/dt इतना फास्ट होता है कि उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा क्रिएट होता है। तो जब भी ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होता है तो हमारी जो ट्यूब है, तो जो हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब है वो क्या होता है कि उसके अक्रॉस इतना हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्रिएट होता है। तो इतना जो इंक्रीज़ हुआ है वोल्टेज, वो इंक्रीज वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रोड के पास क्रिएट होता है। तो इतना हाई वोल्टेज होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो आर्गोन गैस है वो आयोनाइज हो जाती है एंड जो मर्क्यूरी गैस है वो वेपोराइज हो जाती है। तो आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी गैसें हैं वो कंडक्टर जैसी एक्ट करने लगती हैं। तो कंडक्टर जैसा एक्ट करने की वजह से क्या होता है कि ये जो करंट है वो यहाँ से आ रहा है, इस चोक में जा रहा है, इस चोक में से जाते हुए इलेक्ट्रोड में जा रहा है और यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया, मीन्स ये पूरा कंडक्टर जैसा अंदर गैस है वो एक्ट कर रहा है। तो करंट यहाँ पे ना जाते हुए यहाँ से जाता है, तो यहाँ से करंट जा करके इस सर्किट को कंप्लीट करता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो आर्गोन एंड मर्क्यूरी गैस है यूवी रेस प्रोड्यूस करती हैं। तो इस यूवी रेस की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी एमिट होती है, लेकिन ये एनर्जी जो है ये जो है लाइट के फॉर्म में एमिट होती है, लेकिन ये अपने को विजिबल नहीं है, ये अपने को दिख नहीं सकता। तो इसके वजह से क्या करते हैं हम लोग कि फॉस्फोरस की कोटिंग करते हैं। तो वाइट कलर की जो कोटिंग होती है उसके वजह से क्या होता है कि अपने को ये लाइट के फॉर्म में आउटपुट देता है। तो दोस्तों जब भी ट्यूबलाइट लाइट के फॉर्म में एनर्जी देने लगता है तो हमारा जो करंट है वो फेस से होते हुए इस चोक के पास जाता है, इस इलेक्ट्रोड से होते हुए ये अंदर से ही फ्लो होके इस इलेक्ट्रोड के पास आता है और यहाँ से निकल जाता है। तो जो उस टाइम पे जो हमारी सिचुएशन होती है उस टाइम पे स्टार्टर कोई काम में नहीं आता, वो सर्किट से डिसकनेक्ट हो जाता है, मीन्स कनेक्टेड तो रहता है बट सर्किट से डिसकनेक्टेड हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों जब भी ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो हम लोग स्टार्टर को निकाल देते हैं तो भी हमारी जो ट्यूबलाइट है वो चलती रहती है। तो दोस्तों हमारा जो स्टार्टर होता है उसके अंदर ये जो कैपेसिटर है ये यूज़ होता है नॉइज़ रिमूवल के लिए। जो हमारी छोटी मोटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से नॉइज़ जनरेट होती है उस नॉइज़ को ये रिमूव करता है। इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसकी वैल्यू अप्रोक्स 7.8 नैनोफैराड के आसपास होती है। ये बहुत ही कम अमाउंट का कैपेसिटर होता है। तो जब भी हमारी ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो ये पिक्चर में नहीं आता, मीन्स अगर हम लोग स्टार्टर को निकाल दें तो भी चलेगा। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल चोक वाली ट्यूबलाइट होती है वो कभी कभी फटाक करके ऑन हो जाती है, मीन्स
मीन्स 1-2 सेकंड में ही ऑन हो जाती है, एंड कभी कभी वो बहुत ही टाइम लेती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि इतना टाइम ले रही है एंड कभी कभी फटाक करके कैसे ऑन हो जा रही है। एंड जो हमारा स्टार्टर होता है वो देखिए 2-3 बार ब्लिंक होता है, उसके बाद हमारी ट्यूबलाइट ऑन होती है। तो ये 2-3 बार क्यों ब्लिंक हो रहा है उसका रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ। दोस्तों जो हमारी ट्यूबलाइट होती है वो AC करंट पे चलती है। तो जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे जो वेवफॉर्म बनाया है वो साइन वेवफॉर्म बनाया है, क्योंकि वो AC करंट पे चल रही है। तो दोस्तों जो बार बार ब्लिंकिंग होने के बाद ट्यूबलाइट चालू हो रही है उसका रीज़न देखिए, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट क्लोज था, तो जब भी वो ओपन होगा, इन केस समझ लीजिए मेरा करंट यहाँ तक पहुँचा और इस टाइम पे ओपन होती है, तो हमारा जो वोल्टेज जनरेट होगा वो इतना अमाउंट का वोल्टेज जनरेट होगा। तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ है ये हुआ है 250 वोल्टेज। तो 250 वोल्टेज होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो आयोनाइजेशन हो रहा है आर्गोन गैस का एंड मर्क्यूरी का जो वेपराइजेशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है 250 वोल्ट में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी ट्यूबलाइट स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन इन केस समझ लीजिए कि ये मेरा जब ये पीक पे होता है, मीन्स हमारा जो वोल्टेज है तो अगर पीक पे है उस टाइम पे हमारा कॉन्टैक्ट अगर ओपन होता है तो क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है बहुत ही ज़्यादा होगा, मीन्स ये अप्रॉक्स 300 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये 300 वोल्टेज होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो आर्गोन एंड मर्क्यूरी था वो तुरंत वेपराइज हो जाएंगे एंड आयोनाइज हो जाएंगे। मीन्स उनको आयोनाइज होने के लिए अप्रॉक्स 280 वोल्ट चाहिए, तो वो तुरंत उस टाइम पे आयोनाइज हो जाएंगे और हमारी ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी। तो ट्यूबलाइट को ऑन होने के लिए हमेशा ये इसके आसपास अगर ओपन होता है कॉन्टैक्ट तो हमारी ट्यूबलाइट ऑन होगी। अगर उसके पहले या उसके बाद में होता है कॉन्टैक्ट ओपन तो हमारी ट्यूबलाइट नहीं ऑन होती है। तो इसके लिए हमारी ट्यूबलाइट को कभी कभी ऑन होने के लिए टाइम लग जाता है, कभी कभी फटाक करके ऑन हो जाती है। तो हमारा जो स्टार्टर होता है वो खाली स्विच जैसा एक्ट करता है, एंड स्टार्टर भी उसका नाम इसकी वजह से पड़ा है क्योंकि वो स्टार्टिंग के कंडीशन में ही खाली यूज़ होता है। तो दोस्तों आप लोग के मन में क्वेश्चन आया होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है उसके अंदर हम लोग स्टार्टर क्यों नहीं यूज़ करते, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक चोक वाला हम लोग ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं तो ट्यूबलाइट तुरंत कैसे ऑन हो जाती है। तो अगर आप लोग को इसका आंसर चाहिए होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा एक सेपरेट चोक के। तो देखिए यहाँ पर आपने फ्लोरोसेंट लैम्प कैसे वर्क करती है, उसका स्टार्टर कैसे वर्क करता है और उसके कनेक्शन कैसे होते हैं ये आपने यहाँ पर देखा। तो आज हमने फ्लोरोसेंट लैम्प और इनकैंडेसेंट लैम्प की वर्किंग के बारे में स्टडी करी है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब आपने ये देखा है तो इसके हिसाब से आप जो एक असाइनमेंट है वो नोट कीजिए। उसमें यह है कि आपको एक्सप्लेन करना है वर्किंग ऑफ, पहला क्वेश्चन इनकैंडेसेंट लैम्प की वर्किंग के बारे में समझाइए, और दूसरा है फ्लोरोसेंट लैम्प या जिसे हम ट्यूबलाइट कहते हैं, ट्यूबलाइट के स्टार्टर क्या काम करता है और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो ये दोनों असाइनमेंट आपको 28 अप्रैल तक कंप्लीट करके देने हैं। थैंक यू।